Students, today we are starting with a new unit, that is your kinematics. Under that unit there is a chapter, that is your chapter 3rd, that is your motion in a straight line. What is motion basically? We all have seen this concept, very common in our daily life. Every day we observe the things moving around us, whether it is buses, cars, scooters, whatsoever you can see around. There are so many things. You can see and the various animals, you can see various other things, even birds, all are in motion. Even up to extent, as you know, our earth itself is in motion, continuous motion. So motion is an integral part of our life. In physics, we say motion to a term when a motion is set, then a position changes. Object की अगर एक position A है, then it changes to position B with time, with respect to its surrounding. जब किसी चीज की पोजीशन टाइम के साथ बदलते हुए but with respect to surroundings change हो जाए, then we said that thing to be in motion. A certain branch of physics which deals with this entire concept. अब इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे about distance, displacement, your uniform motion, non-uniform motion, all the things we will see in this chapters and how they have impact on our day-to-day life. So now today a type of branch we have to discuss, जिसके अंडर ये हम सारा प्रोसेस पढ़ते हैं. That branch is called mechanics. हम mechanics बोलते हैं. It is a branch of physics. Branch of physics. As physics is a branch of science, it is a branch of physics which deals with the material objects, which deals with the study of, in fact, deals with the study of material objects in motion. You can simply write a branch of science which deals with the study of objects in motion, or simply which deals with motion. Now, it is further classified into 3 further branches. Mechanics की 3 और branches बन गई. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन को स्टडी करें वो मैकेनिक्स हो गई. मैकेनिक्स के आगे फर्दर 3 ब्रांचेस बनी, दैट इज स्टैटिक्स, देन योर काइनेमैटिक्स, देन डायनामिक्स. This word kinematics and dynamics are derived from a Greek word. Kinema means motion, dynamo means a power. That is the result of force, this is the result of motion. Anyway, statics क्या है? Statics मतलब ठहरा हुआ. An object which is at rest. पर इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ static का मतलब क्या हुआ? A study of motion of, यहाँ motion तो आया नहीं, so study of material objects which is at rest. उसे हम statics बोलेंगे. लेकिन क्या उस पर फोर्स लग रही है? अब वो मोशन में नहीं है, तो it doesn't shows कि उस पर फोर्स नहीं लग रही. हो सकता है उस पर यहाँ से फोर्स लग रही हो, यहाँ पे फोर्स लग रही हो, from all the 4 sides. इसका मतलब it is in equilibrium. फोर्स तो है मगर वो मूव नहीं कर सकता चारों तरफ से. अगर बराबर फोर्स लग रही हो तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगी. स्टैटिक के 2 कारण हो सकते हैं. या तो ऑब्जेक्ट पे सच में कोई फोर्स ना लगे, देन दैट थिंग रिमेन इन स्टैटिक पोजीशन. या दूसरा क्या हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट पे चारों ओर से बिल्कुल सिमिलर फोर्स लग रही है. फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन फ्रॉम हियर, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, देन इट विल नॉट मूव. इट मीन्स ये फोर्स पे डिपेंड शायद कर जाए, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम फैक्टर. ये टाइम फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाती टाइम के साथ. Other 2, your kinematics and dynamics. Let's see. Kinematics is again a branch of mechanics. That is static में branch of mechanics थी जो object rest पे deal करती थी. Now kinematics is a branch of mechanics which deals with the object in motions, material object in motion, without knowing
इट्स कोज। इसका कोज नहीं जानते इसमें, ये मोशन से डील तो करती है पर उसके कोज को लेके कोई बात नहीं कहते। यस इट इज देयर। और काइनेमेटिक आपको बताया था, इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमेटा, काइनेमिया। व्हाट डज इट शोज? दैट शोज इटसेल्फ, उसका मतलब था मोशन। पर यहाँ कोज से हमें लेना देना नहीं है, कैसे हुआ मोशन। एवरीवन नोज दैट मोशन के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल कोज होता है, कोई ना कोई फोर्स होती है, बट दैट वी डोंट डील विद दिस थिंग इन काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम कोज को डील नहीं करेंगे। मोशन के कारण क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, जैसे आपको बताया था मैंने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट वी विल डील विद इट। नाउ कम्स डायनामिक्स। इसका मतलब था पावर। डायनामिक ड्राइव फ्रॉम डायनामिक, दैट इज पावर। बेसिकली दिस फैक्टर इन्वॉल्व, यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व होती है। दोनों में ही एक चीज कॉमन है जो है, दैट इज दे बोथ डिपेंड अपॉन टाइम फैक्टर। ये दोनों ही काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स टाइम फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। डायनामिक्स इज द अगेन अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन नोइंग इट्स कोज। इसमें कोज जाना जाता है, कोज इज इंपॉर्टेंट, इसमें कोज जानना जरूरी है। इसमें वी डोंट कंसीडर अ कोज ऑफ। नाउ ऑब्जेक्ट इन मोशन, हम कब कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इन मोशन? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? बिफोर गोइंग फॉर ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन में कैसे आता है, वी शुड नो वन मोर टर्म, दैट इज योर रेस्ट। क्योंकि अगर मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसे कंपेयर करेंगे कहाँ से? किसी एक ऐसी जगह से जो ऑलरेडी मोशन में नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन थिंग्स। क्योंकि हम सोचते थे कि मोशन का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। सिमिलर इज द केस ऑफ मोशन। अगर मोशन है तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ रेस्ट पर भी है। दे आर सर्टेन रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। फर्स्ट, उससे पहले हम बताएंगे रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है with time, with respect to its surrounding, does not change its position with time, with respect to its surrounding, rest किसे बोलेंगे? And object is said to be at rest when it does not change its position with time with respect to its surroundings। तब उसे कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। एंड व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होगा? An object is said to be in motion said to be in motion when it changes its position with time। टाइम के साथ उसकी पोजीशन बदल गई, पर कहाँ पे? with respect to certain reference, with respect to its surroundings। अकेला टाइम क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना, कि हमें पता तो हो किस रेफरेंस से उसकी पोजीशन बदली है। अब मैं आपसे बता रहा था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये आपस में रिलेटिव हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, और ट्रेन चल के आ रही है कहीं से, तो जो फेलो पर्सन, जो ट्रेन में लोग बैठे हैं, दे आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन प्लेटफॉर्म, बट that person is at rest with respect to his fellow passengers. Similarly, a person is at rest at his home with respect to earth, but is in motion with respect to other planets। अगर other planets में अगर हमें कोई ऑब्जर्व कर सकता है या कर रहा हो तो all of us are in motion। Types of motion of a body। बॉडी के मोशन के टाइप्स हैं बेटा, रेक्टिलिनियर और योर ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन।
रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी देयर इज नो मच डिफरेंस। रेक्टिलिनियर होगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए। अगर कोई आप छोटे से पार्टिकल की बात करें, व्हेन इट इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर मोशन ऑफ पार्टिकल की बात करें हम, लाइक दैट, it can be like that, is your rectilinear motion. Even if someone is standing on a top of a tall tower, अगर यहाँ से अगर कोई चीज हमने ड्रॉप करते हैं, if something is dropped, again if we throw something बिल्कुल straight, अगर किसी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, then also, and when something is going down, it all come under your rectilinear straight line motion. But students, now what is translatory motion? ये तो था पॉइंट पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें आपके ट्रांसलेटरी मोशन की, तो इट इज फॉर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो काफी सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, उसका हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मोशन में होगा, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ सिमिलरली सर्कुलर मोशन, तो पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लाइक जैसे पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। पार्टिकल की स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, दैट विल डिस्कस लेटर। बट हियर व्हाट इज रोटेटरी मोशन, सेम थिंग, दिस इज फॉर योर पॉइंट मास, ये पार्टिकल यू कैन से सिंपल एक सिंगल पार्टिकल के लिए, दिस इज फॉर इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे आपका पंखा है, इट हैज सी ब्लेड्स है पंखे के, ठीक है, इट इज अटैच्ड लाइक दैट, एंड तो इंटायर थिंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। दैट मीन्स इस पंखा के हर ब्लेड का एवरी पार्टिकल, इंटायर फैन along with its all the blades will move, that will be your rotation of फैन, मीन्स उसके सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर पॉइंट मास। रोटेटरी, जैसे ट्रांसलेटरी भी पॉइंट मास के लिए नहीं था, वैसे रोटेटरी भी पॉइंट मास के लिए नहीं है। सिंगल पार्टिकल के लिए हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो विल से रेक्टिलिनियर, सीधा चलने वाला रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रांसलेटरी भी वही चीज है, लेकिन इट इज फॉर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सिमिलरली सर्कुलर में पॉइंट मास की बात चलेगी, बट जब आपके रोटेटरी मोशन की बात करेंगे, इट इज द इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ वी मूव फर्दर फॉर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। यू हैव सीन द वॉल क्लॉक पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो हम मोशन स्टडी करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, these are extremes position, extreme position, this is your mean position, this is your mean position. To and fro or back and forth motion of a pendulum, आपने देखा हुआ है, this is bob of a pendulum. To and fro motion of this is called your oscillatory motion. या स्विंग, जिस स्विंग में झूला झूलते हैं, दैट कैन बी आल्सो ऑसिलेटरी। बट व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? दिस इज अ टर्म नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज एसोसिएटेड विद द मोशन। और मोशन को हमें एम्पलीट्यूड की बात करें, जिनमें एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, दैट इज कॉल्ड योर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन के टाइम पे मेन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट तक जब पार्टिकल जाता है, फ्रॉम द क्रेस्ट अप टू ट्रफ, दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, इस मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहा जाता है। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन में इट्स नॉर्मल वन और ओके, बट इन केस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन दिस एम्पलीट्यूड पार्ट बिकम स्मॉल, ये एम्पलीट्यूड पार्ट स्मॉल हो जाता है फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन। ऑसिलेटरी में अगर हम इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें, दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल कम। सो दिस इज फॉर योर ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस इज फॉर योर वाइब्रेटरी मोशन। नाउ वी फर्दर मूव, कि अब हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी अभी, रेक्टिलिनियर मोशन में हमने बात की थी स्टूडेंट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास की। पॉइंट मास क्या चीज है? व्हाट इज पॉइंट मास? पॉइंट मास किसको बोलेंगे? term known as point mass. This is point,
मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, दिस इज योर पॉइंट। क्या इसे पॉइंट मास बोल सकते हैं? यस, इसे पॉइंट मास क्यों बोला? बिकॉज एज कंपेयर टू दिस इंटायर व्हाइट बोर्ड इट इज वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज ट्रेवलिंग 10,000 किलोमीटर्स और 1,000 किलोमीटर्स, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास। क्यों? क्योंकि कार की डायमेंशंस जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसके मुकाबले बहुत छोटी हैं। कार तो कुछ फ्यू मीटर्स की होगी, बट डिस्टेंस कितना बड़ा ट्रेवल करेगी। वैसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ का जितना ट्रेवल करेगी फुल रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन 365 1/4 days, that again earth can be considered there as a point mass. Even if you are walking somewhere for 10 to 12 kilometers, again you can be considered as a point mass. Means किसी ऐसी चीज जिसकी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जिसकी डायमेंशंस बहुत छोटी हों एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज very small with respect to distance traveled by it. Distance traveled by it, उसे कहते हैं हम point mass। के बाद students will now move to frame of reference. Frame of reference को हम ऐसे कहेंगे, frame of reference is a system of coordinate axes attached to an observer having clock with him, with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration of a moving object. It can be like that, x, y, z axis लेने, it's not necessary, it can be in any order. Observer is there with a clock at one of the origin observer है, where it is imagined कि observer के पास clock है कि वो time को read कर सके। Basically this concept is of high level, but just introductory concept कि आपको पता हो कि रेफरेंस किसको बोलते हैं किसी भी चीज़ का। मान लो अगर आपने अपना ही मोशन कैलकुलेट करना हो तो आपको किसी पॉइंट को रेफरेंस मानना पड़ेगा। एंड रेफरेंस आपका घर भी हो सकता है, आपका स्कूल भी हो सकता है, जहाँ से भी आपने मोशन स्टार्ट किया दैट कैन यू कंसीडर अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस ओ को ले लिया, एक्स वाई जेड आर एक्सिस, तो इट मीन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वन ओरिजिन वेयर ऑब्जर्वर इज सिटिंग विद अ क्लॉक। ये ऑब्जर्वर का पॉइंट है, यहाँ से वो आपका टाइम नोट करेगा विद अ क्लॉक। दिस इज कॉल्ड योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम होते हैं स्टूडेंट्स, बट ओनली यू हैव टू स्टडी इट्स सिंपल वे। आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पार्ट याद रखना है। वी डोंट गो इन डिटेल्स ऑफ इट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर राइट नाउ, सिलेबस का पार्ट नहीं है इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में। इट्स ओनली आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेजेबल पार्ट। द इनर्शियल फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम उसको कहते हैं वेयर न्यूटन फर्स्ट लॉ विल होल्ड गुड। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम चैप्टर 5 में करेंगे, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ जहाँ पे गुड होल्ड होता हो, मतलब वहाँ उसको वेरीफाई करता हो। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन में कोई चीज़ चल रही है तो वी कैन से वो इनर्शियल फ्रेम में है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम उसको कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। नॉन इनर्शियल में वो होल्ड गुड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल, हमारी अर्थ मूव कर रही है, उसमें स्पिनिंग भी हो रही है, तो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अर्थ के मोशन में न्यूटन का फर्स्ट लॉ विल नॉट होल्ड गुड, तो उसको हम रखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू डील। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो फ्रेम्स आपको मैंने बताए जस्ट फॉर knowledge sake, you can write their name, inertial and non-inertial. Now we'll move to 3 dimensions, that is 1 dimensional motion. What is 1 dimensional motion? अभी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस किए थे, जहां हम किसी भी एक एक्सिस से, whether it is y एक्सिस और x एक्सिस और z एक्सिस से, हम मोशन के बारे में एक सिंगल एक्सिस से किसी की पोजीशन को बता सकें। पोजीशन इज डिफाइंड थ्रू सिंगल एक्सिस, तो उसको बोलेंगे हम सिंगल कोऑर्डिनेट से। यानी सिंगल कोऑर्डिनेट में क्या आया यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन इज डिफाइंड, देन 1D मोशन बोलेंगे। मोशन ऑफ एनीथिंग, अगर यहाँ से कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वर्टिकली, दैट इज आल्सो 1 डायमेंशनल मोशन। ट्रेन मूविंग इन ए पाथ, अपने बिल्कुल पाथ में ट्रेन मूव कर रही है अपने ट्रैक में, दैट इज 1D मोशन। व्हाट इज 2D मोशन? जब 2 कोऑर्डिनेट से हम किसी चीज की पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ मोशन वर्ड लिखा है,
इसमें जो आई की पोजीशन है उसके लिए यू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, और इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन दिस दैट इज 2 dimensional motion. Billiards ball again a 2 dimensional motion. And what is your 3 dimensional motion? उसके लिए when you need 3 coordinates to specify the position. 3 coordinates कौन कौन से? 3 coordinates 3D motion में हम बात करेंगे 3 coordinates की, x y z. अगर किसी भी चीज की किसी भी पॉइंट को हमने स्पेस में डिफाइन करना हो तो वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स. मोशन ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ये सब 3 dimensional मोशंस में हम कंसीडर कर सकते हैं. रैंडमली जहाँ पे कोई मोशन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं पॉइंट किसी की बात करूँ स्पेस में, नॉट हेयर इन बोर्ड बट इन स्पेस सम पॉइंट इज लाइक, तो वी हैव टू डील विद अ 3 dimensional motion. So these are types of motion which we have to deal with. So students, revise them thoroughly. आपको मैंने हमने क्या रिवाइज किया? जस्ट ए ब्रीफ स्नैपशॉट. वी स्टार्टेड विद मोशन. मोशन क्या होता था? रेस्ट एंड मोशन आपस में रिलेटिव्स हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स. थर्ड हमने बताया था आपको टाइप ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑल टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव डिस्कस्ड. देन वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स 1 dimensional, 2 dimensional एंड 3 dimensional, कि हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं किसी की पोजीशन, क्योंकि हर चीज़ मोशन में है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा 1D मोशन में हो या 2D में हो या 3D में हो. तो वी हैव स्टडीड ऑल द 3 dimensions. Revise it thoroughly, students.